کہتے ہیں تقدیر کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن کبھی کبھی انسان کی اپنی لالچ اس کی بربادی کی لکیر کھینچ دیتی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک گاؤں کا، جہاں ہنسی، خوشی اور محبت بسی ہوئی تھی، مگر ایک لمحے کی بے ایمانی نے سب کچھ بدل ڈالا۔ دو بہنیں جو ایک دوسرے کی جان تھیں، خزانے کی چمک نے انہیں نہ صرف دشمن بنایا بلکہ ایسی مخلوق میں بدل ڈالا جس کا تصور بھی روح کانپ اٹھائے۔ یہ داستان ہے محبت، دھوکے اور انجام کی، اور شاید یہ آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے۔ چاندنی رات میں تین بھائی اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے تھے۔ نصیر سب سے بڑا، ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا۔ اس کی نظر دھندلی تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی اور جستجو ہمیشہ جاگی رہتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے باہر جا کر دنیا دیکھے، لیکن خوف کے باوجود ایک دن چھپ کر مہم پر نکلے گا۔ اس کی یہ خواہش اس کے اندر چھپی ہوئی جرت اور مہم جوئی کی پہلی جھلک تھی۔ درمیان والا بھائی بصیر ہنستے ہوئے اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، اور چھوٹا بھائی جمیل کھڑکی سے باہر دیکھ کر اپنے خوابوں میں کھویا ہوا تھا۔ ان کی نظر دھندلی تھی، مگر ان کی مسکراہٹیں اور دلچسپی ہر کسی کو حیران کر دیتی تھیں۔ ہر شام وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں اور کہانیوں سے ایک دوسرے کی دنیا میں رنگ بھر دیتے۔ نصیر نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ اس نے ایک دن چھپ کر میلے کا رخ کیا، لیکن سب کچھ چھپایا۔ اس کی باتوں میں غرور اور جوش تھا، اور اس کی آواز میں وہ جذبہ تھا جو دیکھنے کی کمزوری کے باوجود اس کے دل کو جلا دیتا تھا۔ بھائی ہنس پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نصیر ہمیشہ کہانیاں بڑھا چڑھا کر سناتا ہے۔ جمیل نے تجویز دی کہ کیوں نہ ہم سب ایک مقابلہ کریں، دیکھیں کون سب سے زیادہ صاف دیکھ سکتا ہے۔ 50 روپے کا انعام، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، نے سب کے دل میں امید اور جوش پیدا کر دیا۔ ہر بھائی اپنے اندر کی جرت اور عقل کو پرکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقابلے کی شرط رکھی گئی کہ اگلے دن صبح مسجد کے باہر ایک پتھر کی تختی پر کچھ لکھا جائے گا۔ جو بھی سب سے پہلے پڑھ سکے گا وہ جیت جائے گا۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے، ہر ایک اپنے ذہن میں منصوبہ بنا رہا تھا کہ کیسے یہ چالاکی سے جیتا جا سکتا ہے۔ نصیر رات کے اندھیرے میں چپکے سے مسجد کے قریب گیا، دل میں خوشی اور خوف کے جذبات کے ساتھ۔ اس نے سوچا کہ مولوی صاحب سے معلوم کر کے وہ جیت سکتا ہے۔ یہ لمحہ اس کی حوصلہ، چالاکی اور مہم جوئی کی عکاسی کر رہا تھا، اور یہ سب کے لیے ایک سبق بھی تھا کہ انسان ہمیشہ اپنی حدود کے اندر رہ کر بھی چالاک ہو سکتا ہے۔ صبح کی ہلکی روشنی میں تینوں بھائی مسجد کے باہر جمع ہوئے۔ ہر ایک کے دل میں جوش اور امید تھی، لیکن ساتھ ہی چھپے ہوئے خوف بھی۔ نصیر سوچ رہا تھا کہ مولوی صاحب سے معلوم کی ہوئی معلومات کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے، جبکہ بصیر اور جمیل اپنی اپنی چالاکیوں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ہر ایک کی نظریں دور دور تک پتھر کی تختی کی طرف تھیں، مگر حقیقت میں سب کو یقین تھا کہ کوئی بھی سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ نصیر نے دل ہی دل میں منصوبہ بنایا کہ وہ مولوی صاحب سے پتہ لگا کر سب سے آگے نکل جائے گا۔ اس کی چالاکی اور تھوڑی سی جرت نے اسے حوصلہ دیا، لیکن خوف بھی دل میں تھا کہ کہیں دوسرے بھائیوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔
उसने आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए मस्जिद के पास पहुंचकर आवाजें देना शुरू करीं। दूसरी तरफ बसीर भी इसी तरह चुपके से आया। उसने ना सिर्फ तहरीर के अल्फाज मालूम किए बल्कि रंग भी पूछ लिया। उसके चेहरे पर फख्र और सुकून की झलक थी। उसने सोचा कि अब जीत यकीनी है और दिल में खुशी के साथ वापस घर की तरफ लौट गया। सबसे छोटा भाई जमील, जो सबसे ज्यादा होशियार था, न सिर्फ तहरीर। सुबह की धूप आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के सहन में फैल रही थी। तीनों भाई अपने अपने अंदाज में तैयार थे। नसीर, जो हमेशा सबसे आगे निकलना चाहता था, अपनी छोटी छोटी चालाकियों में मगन था। बसीर पर फख्र था कि उसने रंग और अल्फाज दोनों याद कर लिए, और जमील के दिल में एक मुकम्मल कामयाबी का यकीन था। हर एक के दिल में फख्र और थोड़ी सी घबराहट थी। नसीर सबसे पहले अपनी नजरें तख्ती पर डालकर कहने लगा, वाह, वाकई शानदार लिखाई है। इसके अल्फाज में खुद एतमादी थी, लेकिन दिल में छुपी हुई बेचैनी भी। बसीर ने मुस्कुराकर रंग बता दिया और जमील ने नाम भी बता दिया। ये लम्हा था जहां भाइयों के दरमियान मुकाबले का असल आगाज हुआ। तीनों भाई एक दूसरे के जवाब सुनकर खुश थे, लेकिन साथ ही थोड़ी हसद भी दिल में छुपी थी। हर एक ये सोच रहा था कि शायद मैं सबसे आगे हूं। दिल की धड़कनें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे और आंखों में मुसाहबकत की चमक थी। ये लम्हा ना सिर्फ इम्तिहान बल्कि भाइयों के जज्बात की कशमकश भी था। इतने में जमील ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम सबकी नजर इतनी तेज है तो ये भी बताओ कि तहरीर किस रंग में है और कौन सा शख्स बनाई है। बाकी दोनों भाई खामोश हो गए। जमील की चालाकी और खुद एतमादी ने लम्हे को एक नया मोड़ दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हर एक ने दावा किया कि वो पहले सही जवाब बता चुका है। हाथ और पांव हरकत में आ गए, थप्पड़ और मुक्के लगने लगे, मगर सबको ये भी मालूम ना था कि किसका कौन सा मुक्का किस पर लगा। ये मंजर गांव वालों के लिए भी इंतहाई मज़ाहिया था। आखिरकार मौलवी साहब बाहर निकल आए और भाइयों को रोका। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि हर इंसान की अपनी सलाहियत और हद होती है। तहरीर अभी लगाई भी नहीं गई थी और सबको ये सबक मिला कि अपनी हकीकत को कबूल करना ही असल कामयाबी है। भाई हंसे, शर्मिंदा हुए और साथ में सबक भी सीखा। रात का अंधेरा गांव पर छाया हुआ था। तीनों भाई अपने अपने मकामात पर छुप गए। नसीर ने दिल में सोचा, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं सबसे बहादुर हूं। हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज थीं और हर परछाई पर नजर थी। चांदनी धीमी मगर काफी रोशन थी। हर पत्ता और दरख्त पर नजर रखना मुश्किल बन रही थी। नसीर ने महसूस किया कि एक छोटी सी हरकत हुई। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने जोर से चिल्लाकर बाकी भाइयों को इत्तला दी और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गए। हर सरसराहट, हर पत्ते की हल्की हरकत उनके लिए खतरे की घंटी थी। बसीर ने जमीन पर पड़े हुए एक छोटे से शोर को महसूस किया और फौरन आवाज दी, यहां से शोर आया। छोटे भाई जमील ने दरख्त की तरफ इशारा किया और अपने दिल की धड़कनें सुनने के काबिल हो गए। हर लम्हा खौफ और जुर्रत का मिला जुला एहसास था। तीनों भाई हरकत करते हुए एक दूसरे को देखकर हंसने लगे, क्योंकि सामने कोई चोर नहीं था। वो गलत फहमी में थे और हर चीज को एक छोटे खतरे के तौर पर देख रहे थे। उनकी हंसी में थोड़ी शरारत भी थी और दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। कुछ लम्हे बाद वाकई एक छाया हरकत कर रही थी। नसीर ने सबको इशारा किया और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब पहुंचे। चोर ने उनकी मौजूदगी महसूस नहीं की। सबके दिल धड़क रहे थे, लेकिन जुर्रत में कमी ना आई। एक लम्हा था जब खौफ और बहादुरी की हदें मिल रही थीं।
आखिरकार चोर को पकड़ लिया गया। तीनों भाई फखर से कहने लगे, देखा, हम भी कुछ कम नहीं। गांव वाले बाहर निकल आए और उनकी बहादुरी पर हैरान रह गए। मौलवी साहब ने भी आकर कहा, देखो, सबको अपनी हद और सलाहियत का इल्म होना चाहिए। बहादुरी का मतलब सिर्फ खतरा नहीं, समझदारी भी है। सब हंस पड़े और भाइयों के दिल में सुकून और खुशी थी। सुबह की हल्की धूप में गांव जाग रहा था। तीनों भाई पिछली रात की कहानी पर गौर कर रहे थे। नसीर दिल ही दिल में सोच रहा था, हमने चोर पकड़कर बहादुरी दिखाई, लेकिन समझदारी भी उसी तरह जरूरी है। हर एक ने अपनी गलतियों से सबक सीखने का अज़्म किया। बसीर ने हंसते हुए कहा, याद है कैसे हम बेकार चीजों से डरते रहे। जमील भी हंस पड़ा और कहने लगा, हाँ, लेकिन यही तो जिंदगी का मजा है, हंसकर सबक सीखना। हर भाई के चेहरे पर खुशी और हल्की शरारत का असर था। गांव वाले भी देखकर हैरान थे कि तीनों भाई अपने गलतियों से सबक लेकर कैसे तब्दील हो गए हैं। मौलवी साहब ने कहा, देखो, हर इंसान की अपनी सलाहियत है, उसे पहचानो और इस्तेमाल करो, ना कि दूसरों से मुकाबला करके परेशान हो। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वो अब अपनी ताकत और सलाहियत को सही कामों में लगाएंगे। नसीर ने कहा, हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की बजाय साथ मिलकर गांव की भलाई करेंगे। इस बात पर सब ने सर हिलाया। सुबह का सुनहरा सूरज गांव के ऊपर उभरा। तीनों भाई पिछली रात की कहानी पर सोच रहे थे और दिल में खुशी महसूस कर रहे थे। नसीर ने कहा, अब हमें अपनी ताकत को समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है। हर भाई ने अपनी खामियों को कबूल किया और एक नया अज़्म पाया। बसीर ने कहा, हमने न सिर्फ चोर को पकड़कर बहादुरी दिखाई, बल्कि समझदारी भी सीखी। जमील हंसकर बोला, हाँ, और गांव वाले भी देख लेंगे कि हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। सबके चेहरे पर फख्र और खुशी नुमाया थी। गांव वाले भी हैरान थे कि तीनों भाई किस तरह अपनी खामियों को समझदारी में बदल रहे हैं। मौलवी साहब ने आकर कहा, जिंदगी का असल मजा अपनी हकीकत को कबूल करने में है। हर इंसान की अपनी खासियत होती है। सब ने गौर से सुना और सुकून महसूस किया। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि अब वो अपनी ताकत और काबिलियत को गांव के भले कामों में लगाएंगे। नसीर ने कहा, हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की बजाय साथ मिलकर गांव की खिदमत करेंगे। सब ने सर हिलाया और दिल में खुशी महसूस की। दिन के वक्त गांव में सब काम में मसरूफ थे। बसीर पानी के कुएं की मरम्मत कर रहा था, जमील बाजार में छोटे काम कर रहा था और नसीर गांव की हिफाजत में था। हर काम में उनके चेहरे पर फख्र, खुशी और सुकून था। शाम की हल्की रोशनी में तीनों भाई बैठकर हंस रहे थे, यादें ताज़ा कर रहे थे और गांव में खुशी का समा था। नसीर बोला, आज हमने बहादुरी और समझदारी दोनों दिखा दी। सब हंस पड़े और दिल में खुशी, सुकून और उम्मीद की रोशनी थी।